let's start with our invocation. A deep breath in. Asato ma sarvamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma mritangamaya. Om Shanti Shanti. So today is our 10th session of Atma Bodh, and we will be doing the verses 28, 29th and 30th. Before that, I would like to take a quick summary from verse 20th up to 27th just to refresh our minds. So 20th verse was, what was the metaphor? Through the metaphors we have been revising. So what was the metaphor in the 20th verse? That सूर्य के ऊपर ही सारी creation आश्रित है. That was 20th. Next, 21st was आसमान के का नीलापन आदि, जैसे कि it is a mirage. So also हमको बहुत सी चीजों का भ्रम होता है. 22nd was कि चंद्रमा का रिफ्लेक्शन टूटा टूटा दिखता है. चंद्रमा पूरा है लेकिन लहरों की वजह से टूटा टूटा दिखता है. The consciousness is ever whole, but we, because of disturbance in our mind, we consider it to be, also broken. 23rd had no metaphor, but there was a very powerful reasoning which was given to us that pain and pleasure or suffering are all to do pertaining to the mind and not to the consciousness. For example, in deep sleep, your mind is not active and you feel no pain, suffering or pleasure. None of these things are existent at that time. 24th, जैसे सूर्य में प्रकाश, जल में ठंडक और अग्नि में गर्मास, वैसे ही आत्मा में सच्चिदानंद. Intrinsic qualities of each one. 25 में बताया कि मैं जानता हूं. ये भाव जब पहली बार आता है तब हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है. 26 is an extension of that. वो बोलता है मैं ही दृष्टा, मैं ही ज्ञाता, मैं ही डूअर हूं, मैं ही सीयर हूं, मैं ही नोअर हूं. फिर 27th में आया रस्सी के ऊपर सांप को थोपना. तो यहाँ पर रस्सी से क्या मतलब है? द आत्म तत्व. तो मुझे जो इस हफ्ते जो इंसाइट आई वो ये थी कि जो सांप हम थोपते हैं अपने आत्मा के ऊपर, वो हमारा अहंकार ही तो है. हम अपने अहंकार को थोप देते हैं तो हमारा सारा नजरिया उलट पुलट हो जाता है. We can't see straight, we see all wrong. मिथ्या को ही हम सच मान लेते हैं क्योंकि our perspective is faulty. तो अब हम आज का सेशन आज के थोड़े से इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में पढ़ती हूँ. मुझे आप लोगों से एक दो सवाल भी पूछने हैं. So we have been given this time span which we call our life. Do we, after doing so much Atma Gyan, do we still feel that it is a pursuit of happiness? हमारी ये लाइफ हमको मिली है so that we can turn it into a pursuit of happiness, or is it that मन का मनोरंजन नहीं, मन के ऊपर transcend the mind,
this life is an opportunity for us to be able to transcend the mind and come to our source, the reality. माया, जितनी भी माया हमको इस संसार में दिखती है, जो कुछ भी दिख रहा है वो माया का ही खेल है, वो सारा चैतन्य से ही आश्रित है, चैतन्य के सपोर्ट पर माया है। तो क्यों ना हम चैतन्य की तरफ अपनी नजर फिराएं और माया के भंवरों में न फंस जाएं। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। Now listen carefully. Do I get illumined by the intellect, or do I illumine the intellect? Do I get illumined? Do I get illumined by the intellect? Do I get illumined by the intellect, or do I illumine the intellect? I illumine the intellect. I illumine the intellect. So all of you subscribe to this point of view that I illumine the intellect, which means that we all are on the threshold of becoming jnanis. So सबको passing marks मिल गए हैं. ठीक है? तो अब हम 28वें वर्ष पर आ जाते हैं. Some of you please unmute yourselves. आत्मा अवभासयति. पद्मा जी कहाँ गई? वो अच्छे से पढ़ती हैं. हाँ जी तो बहुत ही अच्छा. आत्मा अवभासयति. आत्मा अवभासयति. एकः बुद्धयादीनि. एकः बुद्ध्यादीनि. एकः बुद्ध्यादीनि. इन्द्रियाणि अपि. इन्द्रियाणि अपि. दीपः घटादिवत्. दीपः घटादिवत्. स्वात्मा जडैतैः. स्वात्मा जडैतैः न अवभास्यते. न अवभास्यते. हाँ. So I will now read the translation. Just as a lamp illumines a jar or a pot, so also the one Atma, Ekah, the one Atma illumines the mind, the sense organs, and so on. These material objects cannot illumine themselves by themselves because they are inert. They are non-sentient, so they cannot give me the life. And what gives? एक ही आत्मा उस में सबको life प्रदान करती है. So the same explanation put in a different way, translation. The one Atma reveals all your thoughts, intellect. इंटेलेक्ट आदि बोला है, बुद्धि आदि, तो इंटेलेक्ट के साथ में इमोशंस एंड सेंसेशंस भी आ गए. अब इसमें एक ट्विस्ट है. द वन दैट इल्यूमिन्स माय थॉट्स एटसेट्रा is the same that reveals your thoughts etc. Just like a lamp illumines the pots, thousands of pots will be illumined by one light. So one's own Atma or consciousness illumines the thousands of bodies or beings or objects. The one Atma, like the one sun, illumines all the beings of this creation, Jad as well as Chetan. Now, the question can arise that in deep sleep, it does not illumine anything. But we have to remember
that in deep sleep, it is the mind that was asleep. Mind के अंदर कोई भी वृत्तियां जाग नहीं रही थी, इसलिए it was an absence of experience. Experience कुछ नहीं, but put in another way, here again, it's very nice to observe these little, clever sentences. Deep sleep is not an absence of experience, but the experience of absence. What is absent in deep sleep? The vrittis. Write this down, because later on you will keep wondering, what was it she said, experience or this or that. Write this thing down. Deep sleep is not an absence of experience. It is the experience of absence. वहां पर आत्म तत्व है, लेकिन वो absence of vrittis, that is why it has the feeling that you are blank. But you are experiencing that blankness. You are knowing that blankness. Hello, Anupma ji. You've come and brightened up everything with your bright smile. Nice, you say. So good presentation from your side. Okay. Now I'm going to give you several examples on how this thing applies to our life. One example is the street lamp. Street lamp हमेशा street की light हमेशा जलती रहती है, और स्ट्रीट की लाइट को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके नीचे से एक मैरिज प्रोसेशन जा रहा है कि एक फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा है. वैसे ही हमारा आत्म तत्व है. It remains unperturbed and always silent and full. Street lamp full चमकता रहता है ना. दूसरा example, postman. He brings your letters. Is he concerned about the content of the letter or the parcel that you are receiving? His only job is to hand over the letter or the parcel. Atma's only thing is it illumines everything. It does not participate. Now, come a little closer to yourself. Now, suppose you are going from here to there. Now, another thing, passengers in the train. When you meet some passengers in the train, you are not concerned now whether how good this person is, whether you should talk to him, not talk to him, whether you should share your food with him. You just, be loving and, courteous towards your co-passengers. You share your food with them also, maybe, So just like you are unconditionally responsive towards your passengers that you have met in the train, so also in this journey of life, when we start having this unconditional equanimity towards everything, then we come closer to our Atma Tattva. Now, come a little closer to yourself. Suppose you are going by a car. Suppose you are going from one place in Bombay or Calcutta to another place in Bombay or Calcutta. Why does it matter to you if your car is a Rolls-Royce or if it is a Maruti? Why should it matter? You are going from one place to the other. This you are using as a vehicle. What did Gandhiji do? When he had to go from one place to the other, the people who owned cars would offer their cars to him कि हम लोग आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपको यहाँ से वहां जाना है. तो गांधी जी क्या बोलते थे कि भैया इतना समय पहले भेजना कि अगर मुझे चल करके जाना पड़े तो मैं अपने ठिकाने सही टाइम पर पहुंच सकूं. He was a stickler for punctuality.
तो अगर तुम्हारी गाड़ी 2.5 घंटा पहले नहीं आई, क्योंकि आधा घंटा वहां से वहां जाने में लगेगा, और अगर मैं चल के जाऊंगा तो 1.5 घंटा लगेगा, तो तुम 2.5 घंटा पहले भेज देना, तब तो मैं तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर लूंगा, नहीं तो फिर 2.5 घंटा पहले मैं पैदल चलने लगूंगा। अब मैं एक और बात आपको इंटरेस्टिंग कहती हूँ कि अगर समझिए आपकी गाड़ी खटारा है, एक तरफ हमने बात करी रोल्स रॉयस और फरारी की और मर्सिडीज की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं अगर आपकी गाड़ी खटारा है, तो आपको और भी ग्रेटफुलनेस से भर जाना चाहिए कि देखो ये खटारा गाड़ी भी मुझे अपने अंदर बैठा करके उस जगह ले जा रही। तो उस जो लैक ऑफ फीलिंग ऑफ लैक थी, उसको आप ग्रेटिट्यूड से भर लीजिए, तो आपकी लैक वहां खत्म हो जाएगी, और आपको हर समय फील होएगा यदि कैसे ये जो है निराकार की सत्ता, ये कैसे मुझे संभाल रही है, हर समय संभाल रही है, और कुछ नहीं तो ये 11 नंबर की बस तो मेरी बॉडी को ही अटैच करती है, मैं कहीं पर भी पांव से चल करके जा सकती, समझ गए ना। तो जहां पर भी लैक है उसको यू जस्ट फिल इट अप विद ग्रेटिट्यूड, देन वी विल बी इन दैट स्टेट which Kavita ji was talking about earlier. ठीक है, और तो फिर अब देखिए, अब आप अपने आप को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लीजिए। अब आप जब ये जान लेंगे कि सभी वो उस एक ही आत्मा का सपोर्ट है, मेरा भी वो ही सपोर्ट है, तो मैं ही तो सबका सपोर्ट हूं, तो मैं ही बैलगाड़ी में भी बैठी हूँ, मर्सिडीज में भी बैठी हूँ, फरारी में भी बैठी हूँ, और खटारा में भी मैं ही बैठी हूँ। तो इस पर्सनल को फर्क क्या पड़ रहा है, इस पर्सनल को पर्सनल से हटा करके आप इम्पर्सनल में ले जाइए, तो आपके ही सब व्हीकल्स हो जाएंगे। तो अगर मैं बस में चढ़ करके जा रही हूँ तो मुझे वहां पर भी लैक नहीं फील हो, वहां पर मैं क्या कहूंगी, अरे इसकी गाड़ी तो 10 लाख की है, मैं तो इस बड़ी गाड़ी में जा रही हूँ जो कि 30-35 लाख की एक बस आती है, मेरे लिए तो ये गाड़ी है। कभी भी अपने को छोटापन नहीं फील करना है, expanded we are all sadhaks, so I'm giving you so many situations in which you can turn a lack into a finer feeling of greatness, better and better and better. अगर मेरे जीवन में मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो चल रहा है, अगर मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो रहा है और मैं बहुत डिफिकल्टी से गुजर रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है टू ग्रो. I did not even know that I had so much strength to deal with these kind of situations. Did we know until you are in that situation? Did you know, Roxana, that you will be able to handle this thing, moch so nicely, or an operation? No. During that negative time, she knew about her own strength or how much she has gained because of our sessions. You understand? तो हर चीज में अपने लिए कुछ ऐसा उठा लेना है जो हमको आसमान तक ले जाए, और फिर क्या होगा, फिर जब आपने अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर लिया, तब आपकी सिचुएशन क्या होगी कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपने एक पेड़ के ऊपर खूब ढेर सारे फूल देखे, तो आप क्या कहेंगे कि अरे इन फूलों में भी तो वो ही चैतन्य है, मेरा ही चैतन्य फूलों में भी चमक रहा है। तो सड़क पर पड़ा वो दबा फूल मैं हूँ, डाल पे हंसता खिला फूल मैं हूँ, सभी कुछ चराचर का आधार मैं हूँ, यहाँ तक हमको आना है। तो हम ऊपर देख रहे हैं पेड़ की तरफ, उस पर एक फूल इठला रहा है और ओस के साथ अटखेलियां कर रहा है, या हवाओं के झोंकों से फ्लर्टिंग कर रहा है, और एक वो फूल जो सड़क पर गिरा हुआ है और जिसको एक गाड़ी के पहिए ने पूरी तरह से पीच दिया है, वो भी मैं ही हूं। वो सिचुएशन,
तब हमारे अंदर वो एम्पैथी आ सकेगी। जिससे भी हम मिलेंगे उसके प्रति एम्पैथी तभी आ सकेगी जब हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, फुल एक्सपेंशन। और फिर क्या होगा, जैसे कि कविता जी ने कहा था, यू विल बी ड्रंक विद योर ओन वास्टनेस। अभी ये देखिए, सत चित आनंद हम बोलते हैं। आनंद किस चीज का है? देयर इज नो सेपरेट फीलिंग ऑफ आनंद हैपनिंग इन अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन. इट इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट of the vastness of the wholeness. That is the feeling which we call bliss. We don't even call it by any small name like joy or happiness. It is the feeling of bliss which you get, which is in the vastness, in the contentment, in the silence of your own Atma. You are the reality in every object and every being. मैं हूँ is the one illuminating factor in everybody, in everything. Now अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं कहती हूँ कि मैं ये जो कॉन्शियसनेस बहुत प्योर है, अब मुझे नहीं मालूम है कि मैं प्योर हूं कि इम्प्योर हूं, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं तो खाली जॉयफुल हूं, मैं तो खाली अपने आप को सबस्ट्रेटम करके देखना चाहती हूँ। प्योर और इम्प्योर मुझे इस समय अभी तक महसूस नहीं हुआ है, मेरा वो दर्जा ही नहीं है शायद, लेकिन मैं इतना आनंद में हूं कि मैं आपसे क्या बताऊं। Now, as Atma, I cannot spare anything. I permeate everything, including the gobar which may be lying on the road, including the nali ka pani which may be there, including the flowers, including the blade of grass, including the kichad. Where am I not? This is where we have to try to be. Then we can say, मैं परमात्मा पर गगन उगाकर समुद्र और जल में स्थिति बनाकर स्वर्ग लोक को स्पर्शित कर भुवन भर में परिपूरित हो। परिपूरित मतलब permeate every cell. There is nothing which I do not uphold, support, pervade. I am in everything. Now, next point. I am that power which is the source of all activity, all emotions, spiritual yearnings, intellectual understanding. अब मेरे को कोई चीज अगर समझ में आ गई, कोई इंसाइट आई, तो वहां पर मुझे उस इंसाइट को नहीं देखना है, मुझे मेरी नजर हमेशा उस ऑल परवेडिंग आत्म तत्व पर ही। अब समझ लो कि इंट्यूटिवली मेरे को ये फीलिंग नहीं आ पा रही, तब हमको क्या करना है? इंट्यूटिवली मैं वहां नहीं पहुंच पा रही हूँ, तब हमको भक्ति का सहारा, जप का, मेडिटेशंस का, कर्म योग का, इन सब का सहारा लेकर के अपने आप को शुद्ध करना है, जिससे कि एक ना एक दिन जब हम अगली बार ये आत्मबोध टाइप का कोई भी ये लेकर के बैठे, तब सडनली मेरे को इंट्यूटिवली सब समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम 29th वर्स ले लेते हैं। स्वबोधेन अन्य बोधेच्छा, स्वबोधेन
अन्य बोधेच्छा बोध रूपतया आत्मनः बोध रूपतया आत्मनः न दीपस्य न दीपस्य अन्य दीपेच्छा अन्य दीपेच्छा यथा यथा स्वात्म प्रकाशने स्वात्म प्रकाशने आत्म प्रकाशने a lighted lamp does not need another lamp to illumine its light. So too, the Atma, which is knowledge itself, needs no other knowledge to know itself. So, intuitive opening up of the understanding ये क्या है कि ये जो हमको आत्मा का इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल का जो कुछ दिन पहले का जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसका नाम था फ्रीडरिक गाउस। तो फ्रीडरिक गाउस एक छोटे से ब्रंसविक नाम के एक छोटे से टाउन में रहता था। ये रियल स्टोरी है। तो वहां पर का जो मास्टर था, तो उन लोगों ने बच्चों से कहा कि जितने ये 1 से लेकर के 100 तक जितने भी 1 2 3 4 इन सबको टोटल करके तुम ये बताओ कि टोटल क्या होगा 1 to 100। तो उसको असल में क्या हो रहा था कि टीचर को आ रही थी नींद, और वो उसने सोचा कि ये लोग इतने बैठ करके कैलकुलेट करेंगे तो मैं एक झपकी ले लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, तो ये जो फ्रीडरिक गाउस था, ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, चाइल्ड प्रोडिजी था, तो एकदम से आ गया, आई नो द आंसर 5050। तो हाउ ही केम दैट इन एवरी 10 में वो अगर उसको टोटल करेगा, वो अभी तक मेरे समझ में नहीं आया है, but somehow he made a little formula and immediately he came to this intuitively। उसको समझ में आ गया कि इस तरह से इसको टोटल कर सकते। इसी तरह से ये आत्मा की बात जो है, ये इंट्यूटिवली भी हम बहुत आसानी से भोले मन से भी समझ सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक भोले मन की बात बताती हूँ कि मैं जिस सत्संग में पहले जाती थी, वहां पर एक बहुत ही भोली भाली एक लेडी थी। तो बस वो सत्संग से सुन करके आई थी कि भाई सब जगह भगवान ही तो है, कन्हैया ही तो है, कन्हैया ही तो है। तो वो उस दिन रात में अपने घर में अकेले ही जाकर के सोई। उसका छोटा सा फ्लैट, हम लोग वहां पर जाते थे हरिद्वार, तो छोटे छोटे फ्लैट लेकर के उसमें रहते। उस दिन उसके रात में एक चोर आ गया उसके घर में। तो उसने जैसे ही देखा कि ये तो बाहर की टेरेस के ऊपर में एक आदमी खड़ा हुआ है, तो वो तो एकदम से बोला, रे मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया आ गए। उसने उसके अंदर केवल कन्हैया को देखा, और वो जाकर के उसको तो एकदम से मतलब कि जैसे एकदम आत्मविभोर होकर के कन्हैया को प्यार करने को, जैसे कि वो बाहर निकलने को जा रही। तो वो चोर तो इतना सकपकाया, वो उल्टे पांव दौड़ करके उधर से छलांग मार करके बाहर निकला। तो भोले मन से भी हम बहुत बार इंट्यूटिवली सब में उस परमात्मा तत्व को देख पाते हैं। इसके लिए बहुत बड़े मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझा रहे हैं, इफ यू आर होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प, डू यू नीड अनदर लाइटेड लैम्प टू रिवील एन ऑलरेडी लाइटेड लैम्प? You need a lighted lamp in a dark room to see furniture. Now suppose you are holding a lighted lamp, do you need another lighted lamp to see that lighted lamp? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये आता है, अच्छा ठीक है,
अब ये जो मैंने ये आंखों से देखा तो आंख जो है वो बुद्धि से लाइटेड है और बुद्धि जो है वो आत्म तत्व से लाइटेड है। फिर उस आत्म तत्व से कौन लाइटेड है, फिर उससे कौन लाइटेड है। तो इस तरह से हम लोग एक इन्फिनिटी के एक चक्कर में पड़ जाते हैं। उसको क्लियर करने के लिए शंकराचार्य ने लिखा है, जब ऑलरेडी एक लाइटेड लैंप है, उसको लाइट करने के लिए तुमको एक और लाइट और एक और साक्षी और उसका भी साक्षी और उसका भी साक्षी नहीं चाहिए। समझ गए आप। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक शब्द लिखे हैं उनको भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर ये जो लिखा है ना कि स्वबोधे न अन्य बोधेच्छा, वो इच्छा, इच्छा जो शब्द है वो नीड के लिए है। देयर इज नो नीड टू लाइट अनदर लैम्प। बोध यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है 2 बार, वो किसके लिए हुआ है, आत्मा के लिए। तो 75% of the time the word both is used for knowing or knowledge, but here it is the 1/4 percentage of the time where it is used as atma. Here it is used for atma. Here it means with regard to your own consciousness, you don't need another consciousness to know your own consciousness. It is self-revealing. It just shines. We do not experience experience a second consciousness revealing the first. We do not need a third consciousness revealing the second. What is our experience? We just experience one seamless consciousness being revealed. We have done our meditations where we have felt that seamless consciousness being revealed to us when the mind and our concepts and about ourselves, our identity was a little bit suppressed. We have ourselves felt that. है कि नहीं? The light is necessary to see furniture in a dark room, so a lamp is brought to illumine furniture. But you do not need another lamp to reveal the already lit lamp. उस लैंप के लिए आपको एक और लैंप की जरूरत नहीं. If we remove the furniture, etc., the lamp still remains. It does not cease to exist. In all our 3 stages, waking, dream, and deep sleep, the self-effulgent Atma, the source of all life, remains continuously illumining the scene. The outer world objects are illumined so long as we are extrovert. हमारा नेचर ही एक्सट्रोवर्ट है, हम बाहर ही देखते हैं, हम अपनी अंदर की आंख खोल करके भीतर झांकते ही नहीं है. हमको ये 5 इंद्रियां मिली हैं बाहर के सीन को एनालाइज करने, और हम उसमें इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम अंदर, हमको समय ही नहीं मिलता अंदर तक. अब देखिए, एक सवाल है. What is this thing? Do you need another light to light up the consciousness? वही जो बात है, when it is self-effulgent. Because the first luminous self-effulgent consciousness is enough to light itself and the whole world of objects and beings. लेकिन हम उसको मिस कर जाते हैं, जैसे कि हम अपनी ही आंख को नहीं देख पाते. हम पूरा संसार देखते हैं और इसलिए हम इन्फर कर सकते हैं कि हमारे पास आंख है, लेकिन हम अपनी आंख को कभी भी नहीं देख पाते.
हम एट बेस्ट उसका रिफ्लेक्शन एक मिरर में देख पाते, लेकिन हमारी आंख अंदर से क्या है वो हम नहीं जान पाते। एक बात हम लोग जाने अपनी उन मेडिटेशंस के कारण, क्या जाने हैं कि उसकी जिसमें हम थे, जो हमारी रियलिटी है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं। ये कहाँ खत्म होता है और वो कहाँ शुरू होता है वो मालूम नहीं पड़ता। हम लिमिटलेस हैं, हम बाउंड्री लेस हैं। जैसे आकाश को खंड खंड नहीं किया जा सकता, वैसे ही जो आत्म तत्व है वो तो आकाश का भी आकाश है, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो वो कैसे खंड खंड होगा? इसलिए माय कॉन्शियसनेस इज इनफ टू इल्यूमिन एवरीबॉडी इन दिस होल sansar. It is up to me to recognize that I am nothing other than my own consciousness, that undivided consciousness which is the consciousness of everyone, and therefore I alone am. अब हम 30th वर्ष पर पहुंच जाते हैं। निषिद्ध निखिलोपाधीन, निषिद्ध निखिलोपाधीन न इति इति वाक्यतः न इति वाक्यतः विद्यात् ऐक्यं महावाक्यैः, विद्या ऐक्यम् ऐक्यं महावाक्यैः वाक्यैः जीवात्मा परमात्मनः। इसका मतलब क्या हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ नेगेशन। अभी शंकराचार्य समझा रहे हैं कि हमको कैसे अपनी आत्मा का एहसास हो, हमको कैसे उसकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर जागे। तो बोले कि पहले तुम नेगेट करो, नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि जो है उसको तो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। इट इज इनडिस्क्राइबेबल। Therefore, the best we can do is neti neti. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। By the process of negation of the conditionings or upadhis, निखिलोपाधीन मतलब all the numerous upadhis that we have given. As per the scriptural statement, it is not this, it is not this, neti neti. The oneness of the individual soul and the supreme soul as indicated by the great Mahavakyas has to be realized. खाली नेति नेति करके हम राइट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अगर हम लोग एक हाथी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं टू अ पर्सन हु हैज नेवर सीन दैट, तो बोलेंगे कि वो घोड़ा नहीं है, वो गधा नहीं है, वो गाय नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, वो बैलगाड़ी नहीं है, लेकिन बैलगाड़ी के जितना बड़ा है। तो हम लोग ये सब करते करते वो क्या है उसके ऊपर हम नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, तो उसका मेन्यू कार्ड खाली पढ़ करके हमको सारा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। उसको हम देख लेंगे, डिशेस के अपीयरेंस को देख लेंगे, फोटोग्राफ्स देख लेंगे, मेन्यू कार्ड पढ़ लेंगे, जब तक हमने इसको चखा नहीं होगा तब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो वो चखने का क्या उन्होंने बताया? वो बताया कि तुम महावाक्य जो है अपने शास्त्रों में बताए हुए महावाक्य, उनको अपने ऊपर अप्लाई करने से तुमको फुल पिक्चर मिल जाएगी। पहले नेति नेति और फिर महावाक्य, ये दो चीज का उन्होंने बताया है। How do we know the true nature of the Atma? Answer:
by negating all the identities or upadhis that are associated with you, but are not your true nature. Body, mind, prana, intellect, sense organs. Negate, negate, negate. How do you negate? That you, whatever, it's all this thing, a story of object and subject. You are the subject, you want to know, you are the subject. Whatever is an object, whatever you can point out, this, that is not your true self. That becomes the object. So, I know my body, so I am above the body. I know my body, so I am above the body. I know my prana, so I am above the prana. I know my mind, so I am above the mind. I know my emotions, so I am above the emotions. I know my pains and aches, so I am not the pains and aches. I am here or there. I know space, so I am beyond space. I know my past. Do you know your past? Everybody knows their past. I can project a future. So I am beyond past and future. And the present is always non-existent. क्योंकि जो present अभी है present, वो एक second में तो past हो गया ना. Where is the present? It's an illusion. It is a presence, is what we have experienced in our meditation. Do you agree with me, Manisha? Yes. I am subject to birth and death. ये देखिए, ये चीज आप समझ जाइए. I am subject to birth and death. मेरे अंदर बर्थ भी घटित होता है और डेथ भी घटित. लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर बर्थ है और डेथ है और डिटीरियोरेशन. So I am above all of those. I am not that. But negation is not the whole knowledge. उसके आगे महावाक्य आते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग फंस जाते हैं. हाँ, अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक कोर्ट में एक केस चल रहा था. उसमें 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था. तो एक आदमी को बुलाया विटनेस के लिए. तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं आई वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ दैट कोलिजन. तो क्या हुआ कि पहले तो बहुत जोर से स्क्रीचिंग साउंड आया. तो हम लोग सब उधर देखने लग गए. तो इतने नेक्स्ट थिंग इज दैट वन ब्लैक कार एंड वन रेड कार हैड कोलाइडेड. तो रेड कार के अंदर से एक लेडी आई और ब्लैक कार के अंदर से एक आदमी आया और वो लोग आपस में लड़ने लग गए. तो वो जब लड़ाई जरा ज्यादा गर्म हो गई तो उस लेडी ने क्या किया, शी स्पैट ऑन द मैन. तो मैन ने क्या किया, वो ही स्टार्टेड पुशिंग दिस लेडी. So I was a bystander. So I said, this is getting too much. So I came over there and I told the woman to just back off a little. तो उसने मेरे ऊपर भी थूक दिया. तो अब तो मैंने भी उसको 2-4 बातें सुना दी. तो जज ने कहा, you are not a witness anymore. You are a partner in the crime. तो दूसरा विटनेस को बुलाया. अभी दूसरा विटनेस आया तो बोलने लगा कि मैंने ये सब देखा जो इसने अभी तक बताया है. उसके बाद क्या हुआ कि this woman picked up a stone and she flung it to the man and the stone went and hit me. So I came forward and I gave her a few words of my own. Then the judge said, and you are also part of the crime. You are also no more a witness. मैं तुमको कैसे witness मान लूं?
इस तरह से हम इस जीवन के झमेलों में उलझते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक ब्रह्मज्ञानी कैसे डील करता है। तो ब्रह्मज्ञानी के उसमें क्या हुआ, रमन महर्षि के आश्रम में एक बार चोर घुस आए थे। तो चोर घुस आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये रमन महर्षि के आश्रम से इतने भर भर के थाल दान होता है, इतने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, इन लोग के पास तो बेशुमार धन दौलत होगी। तो लोग अपना रास देख करके एक अच्छा मौका, और वो लोग आश्रम के अंदर घुस गए और वहां पर एक के बाद एक अलमारियां खोल खोल करके देखते रहे, वहां पर तो कुछ भी नहीं मिला। तो उन चोरों को बहुत जोर से गुस्सा आया और उन्होंने देखा रमन महर्षि यहाँ पर सो रहे हैं, तो उन्होंने उठा करके दो चार उनको भी जड़ दिए रमन महर्षि को। इतने में जो उनके डिवोटीज थे उन्होंने पुलिस को बुलाया, ये हो गया वो हो गया, चोर भी पकड़े गए। तो रमन महर्षि से पूछा गया, आपने तो सब देखा था ना, तो आपने क्या देखा? तो रमन महर्षि ने कहा कि ऐसे से आए, उन लोगों ने खोल के देखे और वो लोग, उन लोगों ने मुझे मेरी भी थोड़ी पूजा कर दी। जब ये जो बुक्का लगाने की का है ना, इसमें मलयालम या कन्नड़ में इसको भी पूजा बोलते हैं, तो मेरी भी थोड़ी पूजा उन्होंने कर दी। लेकिन उनके अंदर कोई रोष नहीं आया, कोई रिएक्शन करके नहीं आया। उन्होंने सब वैसे बोला जैसे जैसा हुआ था, as though he was not part of the whole scene. तो ये हुआ एक ब्रह्मज्ञानी के हैंडल करने का तरीका। अब मैं आपको एक ऑर्डिनरी लेडी का बताती हूँ। तो क्या हुआ कि इन लोग के पास नया नया पैसा आया था, तो इन्होंने बड़ा अपना घर बनाया, उसमें एयर कंडीशन सारे कमरों में लगवाए, बड़ा सा घर एयर कंडीशन। और ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ उस नए नए बने हुए घर में जाकर के अब पहली रात गुजार रहे। तो अभी उसके अंदर एक एयर कंडीशन के गाले में एयर कंडीशन की मशीन फिट नहीं हुई थी। तो चोरों को मौका मिल गया और वो उस एयर कंडीशन के गाले के अंदर से चढ़ करके अंदर आ गए और उन्होंने उस मकान मालिक को, मैं रियल लाइफ की बात बता रही हूँ, उसको मार डाला और उसके सामने, उस औरत के सामने उसको मारा। अब जब तहकीकात हुई, पुलिस केस हुआ, सब हुआ, और ये जो औरत थी, ये इसका कोई गुरु था। तो गुरु ने कहा कि देखो, अगर तुमको इस चीज का हमेशा के लिए खत्म करना है ये किस्सा, तो तुम इसका पार्ट ऑफ द नहीं बनना, विटनेस। तुम गवाही नहीं देना, उस आदमी के विरुद्ध गवाही मत देना। अब कितनी मुश्किल बात है, आप लाइन अप करिए और आप अपने वो जो आपके हस्बैंड का मर्डरर है वो वहां खड़ा हुआ है और आप उसको पहचानते, लेकिन उसने कह दिया मैं नहीं जानती। कोई और गवाही दे दे, और भी तो लोग हो सकते हैं ना। उसने अपने मुंह से इसको करार नहीं किया कि ये मर्डरर है। आफ्टर ऑल वो आदमी छूट गया, हाँ, लेकिन उसका इतना बड़ा रिहैबिलिटेशन, समझ लीजिए, उसके मन पर इतना बड़ा असर हुआ। वो जानता था कि इस औरत ने मुझे देखा है और ये जानती है कि मैं ही मर्डरर हूँ। उसके ना कहने से उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया कि जब भी वो उसी छोटा ही शहर था, उसमें उससे उसकी मुठभेड़ होती थी, तो वो झुक करके उस लेडी को प्रणाम करता है। इतना उसके अंदर बदलाव आया, कहीं तो असर करता है। देखिए, मैं नहीं सब्सक्राइब करती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है मैं कर भी ना पाऊं, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो किस्सा है, वो आदमी तो वापस आ नहीं सकता, मेरा हस्बैंड तो वापस आ नहीं सकता। मुझे ये
गिला और ये शिकायत और एक दूसरे को दोषी ठहराने का यहीं पर समाप्त कर देना है खेल। तब अगर मेरी हिम्मत हो तो मैं करूं। मैं आपको ये 2-3 किस्से इसलिए बताई हूं कि कैसे हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैसे हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। अब ये जो 4 महावाक्य हैं, इससे हमको खत्म करना है। तो क्या बोला कि the Mahavakyas, they will point to you your Atma Tattva. You have to come to the stage where you can say Aham Brahmasmi. तो 4 महावाक्य क्या है? तत्वम असि। ये कौन से उपनिषद में से है? ये छांदोग्य उपनिषद में। और इसका क्या मतलब है कि वह तुम हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये कौन से उपनिषद में से है? मांडूक्य। मेरी ही आत्मा वह ब्रह्म तत्व है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद। कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद। आई एम दैट ब्रह्म। 3 टाइप के डिवोटीज होते हैं। एक तो जो इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, वो कहता है कि भगवान तो ऊपर वो कैलाश कैवल्य लोक में है, कैवल्य धाम में है। या कोई बोलते हैं कि भाई ब्रह्मलोक में है। अलग अलग जो हम लोग के शैव पद्धति वाले या वैष्णव, वो लोग अलग अलग अपने भगवान का धाम बताते हैं। फिर जो मिडलिंग वाले साधक होते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा इज इन माय हार्ट। और जो हाईएस्ट कैटेगरी के होते हैं, वो कहते हैं he alone has become all this, but he is still a devotee। जो पद्मा जी शुरू में कह रही थी कि as a devotee he will say he alone has become all this, and the highest, या जिसमें ब्रह्म में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहता, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपको समूचे आत्म तत्व को अपने अंदर महसूस करना है, तो रामकृष्ण इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देते हैं बेल के फल का। तो बेल का फल जो होता है, उसके अंदर उसका छिलका होता है, गूदा होता है और बीज होता है। तो अगर तुमको गूदा चाहिए तो तुम छिलका और बीज हटा दोगे। लेकिन अगर तुमको उस आत्म तत्व को पूरी तरह से आत्मसात करना है, अगर तुमको उस बेल के फल का वजन मालूम करना है, तो तुमको छिलका और बीज और गूदा तीनों को ही ग्रहण करना होगा। तब तुम आत्म तत्व में पूरी तरह से टिक सकते। आप या तो हम आपस में थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, हर एक आदमी अपनी शेयरिंग कर सकता है जो जो उनको अच्छे पॉइंट लगे, और या तो हम एक भजन सुन सकते हैं। अब आप बोलिए। मेरे ख्याल से आज थोड़ी शेयरिंग कर लेते हैं। हाँ Amna ji, I just wanted to clarify this हाँ last point which you made. How does it relate to us? Means we have to accept the good and the bad. That is what it means. You have to first become joyfully expanded. Okay, that is the first step, where every negativity that happens in your life, turn it into a positivity, because we are existing on in both planes. In the sessions, we are taken to a very high spiritual plane, then we have to come back to our practical field, है ना। इसलिए मैंने जब आपको एग्जाम्पल्स दिए तो दोनों के दिए थे।
अब जब आप एक्सपैंडेड फील्ड में हैं, उसका आप इतना लुत्फ उठा लीजिए कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाएं तब उसका असर आपके अंदर रहे और आप नॉन पर्सनल आई से बात करें, डील करें, अपने आप को कंडक्ट करें फ्रॉम अ नॉन पर्सनल फील्ड, नॉट अ आई वाला, पर्सन आई वाला। पर्सन आई वाली फील्ड से करेंगे तो आपके अंदर सारी सेल्फिशनेस खड़ी हो जाएगी, एम्पैथी नहीं रहे। Are you answered? Roxana, is your question answered? No, my thing is that how does that last example of the bale with the seed Huh. and how does it relate to what we are discussing just What now? we are discussing, how it relates. Yes. Yes. First you go through that and then you can understand that when we have to accept the Ram and the Ravan both within me. The Ram and the Ravan will exist simultaneously. Yes, got it. Clear. राम या रावण नहीं कोई अंतर, दोनों में है, दोनों सुंदर है और दोनों में कोई अंतर नहीं है फ्रॉम द आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू। रावण को थोड़े से और दिन लग जाएंगे, राम तो परफेक्ट बीइंग है ही, रावण थोड़े से दिन और लग जाएंगे। उसमें फर्क क्या पड़ता है? बिकॉज दिस टाइम स्पैन इज फॉर मिलेनिया, बिलियंस ऑफ इयर्स। कमला भाभी, वैसे रावण भी तो कम भक्त नहीं थे। हाँ, अभी उसके ऊपर थोड़े से देर के लिए वो वो क्या होता है, अहंकार एक का पर्दा पर्दा आ गया था, पाप अहंकार का का पर्दा आ गिर गया गया था था। कि वो मेरे से बड़ा कोई पंडित नहीं है फ्रैंकली। हाँ। और अभी सामने जैसे शिवरात्रि आ रही है तो वो तो शिव के बहुत ही वो थे ना, प्रकांड भक्त थे। हाँ। बिल्कुल। तो इसीलिए इसीलिए आपने जो कहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन that we have to realize which quality you want to develop. Right. See, we all have all the inherent qualities hidden in us, so it is up to us now which one we want to expose to the world and which one we want to sort of what should I say, which one do we want to eradicate from within us. What do you want to live in? What do you want to live as? And we have to let go also. I mean, there's certain things which you have to let go. It is, it's a very once you get it, then the process becomes very simplified. Yes, very easy was the word which you quickly changed. I said you catch me again. No, but actually, you know, when you start understanding these things, that the way Amna Bhabhi explained, that it is all within us. That's it. Just that one little thing, the moment you get that one little trick, like you said, na, that when we have those little toys which we had that as children, there has to be one particular button which you had to press correctly so that it moved in the way you wanted. It's just that. Who else would like to say? Yes, Anupama ji. मैं क्या सोच रही थी कि जो आपने स्टोरी बताई वो कोर्ट सीन की, तो कौन सी कोर्ट की आपने बताई ना कि वो मर्डरर का नाम नहीं बताया उन्होंने। हाँ। तो वो बहुत अच्छा निकल गया वो आदमी। अगर तो वो ऐसा सोचेगा, अगर वो आदमी अच्छा नहीं है, रावण जो बात कर रहे, राम और रावण दोनों हमारे अंदर है, तो वैसी सोच का अगर वो आदमी है तो वो तो खुश हो जाएगा और सोचेगा मेरे दबाव से, मेरे डर से उसने नहीं बोला। इसीलिए मैंने कहा कि आपको खुद देखना है आपका मन क्या मानता है। मैंने तो खुद ही कहा कि आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस वे ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, है ना। लेकिन ऐसा होने से ये इसका नतीजा हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन में जाएंगे, कोई भी राइट या रॉन्ग स्टैंड नहीं होगा। उस समय जो आपका मन आपको कहेगा करने को वो ही राइट हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसकी मिस्ट्री को समझे, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएं, उस एक इंसिडेंट की हिस्ट्री में मत जाइए। आपको जो
उस समय सही लगे वो ही आपके लिए सही डिसीजन है। अमला भाभी, एक पहले भी शायद एग्जाम्पल आया था कि एक आदमी के हाथ में एक चाकू है, हाँ। अब वो सर्जन भी है, वो हाँ। चाकू उसके लिए becomes a life saving device, हम्म, and that other man could be a killer or a, जैसे आप बता रहे थे, तो for that person the same action of Right. having a knife and cutting, the action is the same, but जैसे आप बोल रहे, we have to look at the thing. We can't go that because he's got a knife in his hand, he's a killer. He can And be also a we life can't saver go also. कि अगर उसने वो ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगा, हाँ, ये वो भी भी नहीं हमको ना, सोचना है। ना। हमारा मन, हमारी कॉन्शियसनेस जान पाएगी कि हमको उस समय क्या एक्शन लेना। और शायद थोड़ी सी अवेयरनेस की भी जरूरत है। हाँ वो है, मतलब लेकिन देखिए ऐसी सिचुएशंस में हर समय for you to be wholly equanimous is difficult. I agree. तो उस समय आपकी कॉन्शियंस, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी और वो ही सही, क्योंकि अंजाम क्या होगा हम नहीं We जानते, don't know. Right. फल कभी भी अपने हाथ में नहीं। No, no. और इस चीज को जैसे ही हम समझते हैं ना कि ये अंजाम हमारे हाथ में नहीं है, एक हाँ। सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाती है अंदर से, Right. कि भाई मैं तो जो कर रही हूँ अपने सही सोच के कर रही हूँ, फिर आई एम फ्री। Right. दैट वो बंधन या वो सप्रेशन या वो उसकी भावना खत्म हो जाती है सब। बिल्कुल। Urvashi, would you like to say something? Rekha ji and Mamta, would you like to say anything? आप कह रहे हैं कि जैसे कि जब हम कहते हैं कि हम तो कर्म बंधन से टूट जाते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट अदर पर्सन इज गोइंग टू बिकम अ गुड मैन और अ बैड मैन, बट Right. इफ वी मेक दैट डिसीजन, आई एम रिस्पांसिबल फॉर माई सेल्फ. तो Right. द लेडी बिलीव्ड इन द गुरु, so that good thing came to her. Whatever came to her was the right, and the Guru knew Guru knew what would be the most suitable and thing the to only do thing is that under कि, the circumstances. my at least I am over with karma, हाँ. at least. So what that person does is not. Yes. Absolutely right. Very well said. मैं इसमें कुछ और बात बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे हमारे गॉड है, ईश्वर है, वो भी हम अगर कुछ गलती करें तो हमें सजा देते हैं, कर्मा जिसको हम बता रहे हैं कि कर्म हम जैसा करते हैं हमें उसका वापस रिवॉर्ड मिलता है। तो ये भी वो उसने गलत कर्म किया पर उसे तो अच्छा रिवॉर्ड मिल गया। देखिए, there is no God sitting up there to give you the fruit of your action. You yourself give the fruit of your action. You decide how your life will turn. So we are much past that kind of a thinking that there is a God which gives the karma, the result of the karma. Okay. Anupama ji, Understand? I would like to say something here, if I may. Yes, please. Just because he got off in this lifetime doesn't mean that he will not have to bear the fruit in some other Yes. lifetime. Yes. The time is not fixed. Yes. He will have to bear it sometime. He will have to bear it sometime or the other. How, Urvashi, what were you wanting to say? Okay. Yeah, I could understand. नहीं, I was just saying कि वो उसी के बाद जो आप लोग कह रहे थे कि I mean, once you get over the feeling of doership yourself, that you are not the doer, you are just a sort of witness, or maybe then you get a better perspective. You are seeing things from a Right. better or a different perspective. Yes. So, Very nice. I mean, we then you have to don't. change the what is the perspective we have to change? That I am a person. This is the perspective. we have. And I am non-personal. I am vast. I am extended. बिल्कुल. I am expanded. You're not confined or constrained or constricted. Yes. Exactly. Then whatever decision you take is more likely to be correct. आज ये बहुत अच्छा लगा कि फीलिंग ऑफ लैक को ग्रैटिट्यूड फिल अप कैसे करें. I really like this कि whatever there is lack or feeling of lack, but if you put it gratitude and you fill up with the other thought, Yes. so it changes everything and you become happy also. Yes. I think I really like this, change lack to gratitude. So Yes. that because there's so much given to us which we do not see,
But Yes, once we change, everything changes. It's really beautiful. everything changes. Everything. Okay, with these words, I'll take your leave. Thank you.